today we are going to start carbon and its compound. It is a revision topic for class 10th. First of all, in this chapter we have discussed about the various property of carbon and then its compound. In this chapter we have seen that carbon have some unique properties. Carbon have some unique properties. First, catenation. First property is catenation. Catenation means the self-linking property of the carbon atom is known as catenation. Self-linking means they will form the open chain, a branch chain, or a cyclic chain. In this process, this is open chain. There are many carbon atoms are joined together to form a open chain. Then they will form just like this. They are the branch chain, and some carbons are joined in a cyclic form. That is this is cyclic chain. So in the catenation we have seen that the carbon have a unique property. This property is only found in the carbon atom only. They will form the open chain, the branch chain, and the cyclic chain. For example, there are some compounds. There are some compounds like CS3, CS2, CS2, CS3. CS3, CH, CS2, CS3, CH3. They are the open chain compound, they are the branch chain compound, then they are the cyclic chain compound. Cyclic chain compound. In this way, we have observed that in process of catenation, the open chain, the branch chain, and the cyclic chain is formed. Next है tetravalency of carbon atom. Tetravalency. Tetravalency means the carbon has a 4 valence electron. It means carbon is a tetravalent element. Carbon, the atomic number is 6. It has 2 and 4. The 4 electron in the valence shell. These 4 electrons are the 4 valency are saturated in this manner. Carbon forms 4 single bond like this, or carbon forms 1 double bond and 2 single bond, or carbon forms 1 triple bond or 1 single bond, or carbon forms 2 double bond. Carbon forms 2 double bond. The 4 valency of carbon atom is saturated in this manner. The 4 single bond is obtained, or
one double bond or two single bond, or one triple bond and one single bond and two double bond is obtained. Their structure is, if the carbon forms four single bond, the bond angle is 109 degree and 28 minute. 109 degree 28 minute means the structure is tetrahedral. Structure is tetrahedral means any two valencies forms 109 degree 28 minute, and the structure is tetrahedral means the carbon is situated in the center and the four valencies are arranged in this manner in which that any two valencies form 109 degree 28 minute. When the carbon valency form one double bond and two single bond, the bond angle is 120 degree and the structure is trigonal bipyramid. Trigonal bipyramid, and the bond is formed in this manner. Carbon any two valency form 120 degree. This is trigonal bipyramid when two valency forms in double bond and two single bond is obtained. Then the structure is trigonal bipyramid and any two valencies form 120 degree. When the carbon valency form triple bond and one single bond are two double bond. In this condition, the bond angle is 180 degree and the structure is linear. Like this. Carbon is situated in this manner. ये एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा इस टॉपिक को। जब कार्बन की फोर वैलेंसीज फोर सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है और इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, जिसमें कार्बन सेंटर में होता है और फोर वैलेंसीज इस तरह से सैचुरेट होती हैं कि किन्हीं दो वैलेंसीज के बीच 109 डिग्री 28 मिनट की एंगल का फॉर्मेशन होता है। दूसरी कंडीशन तब आती है जब कार्बन एक डबल बॉन्ड और दो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कार्बन एक डबल बॉन्ड और दो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इस कंडीशन में जो बॉन्ड एंगल है वो 120 अंश का होता है, 120 डिग्री का होता है, और जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिड होता है, जैसा कि यहाँ बना हुआ है। इस तरह से 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनता है। और जब कार्बन की एक बैलेंस ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड बनाती है, या कार्बन की दोनों बैलेंसी डबल डबल बॉन्ड से सैचुरेट होती हैं, तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है और जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर होता है। तो इस तरह से हम कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं वो हम IUPAC सिस्टम से लेते हैं, क्योंकि जब हमें IUPAC क्लियर होगा तब कोई भी चीज़ हमें पढ़ने में सुविधा होगी। तो IUPAC के लिए हम चलते हैं। IUPAC सिस्टम
IUPAC means international, I for international, U for union, P for pure, A for applied, C for chemistry. IUPAC system means International Union of Pure and Applied Chemistry. It is a system which is applicable for the naming, the rules of the naming of the organic compound. How to write the name of any organic compound, it is observed by this system. इस सिस्टम से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग की स्टडी करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें कार्बन को काउंट करना होता है, कार्बन की चेन देखनी होती है, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना होता है और जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है उधर से कार्बन की काउंटिंग करनी होती है। ये केवल क्लास 10th लेवल का है, इसलिए यहाँ पर जितने फंक्शनल ग्रुप हैं केवल उतने ही आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम कार्बन चेन के लिए क्या करते हैं, अगर 1 कार्बन है तो इसको पढ़ते हैं हम लोग मेथ, 1 कार्बन पर मेथ पढ़ते हैं। अगर 2 कार्बन है तो हम इसको एथ पढ़ते हैं, 3 कार्बन है तब हम यहाँ पे इसको प्रोप पढ़ते हैं, 4 कार्बन है तो इसको हम ब्यूट पढ़ते हैं, 5 कार्बन पे हम पेंट पढ़ेंगे, 6 कार्बन को हम हेक्स पढ़ेंगे, 7 कार्बन पर हम हेप्ट पढ़ेंगे एंड 8 कार्बन पर हम ऑक्ट पढ़ेंगे, 9 कार्बन पर हम नोन पढ़ेंगे और 10 कार्बन पर हम डेक पढ़ेंगे। इसके बाद एक सीरीज हमें बनानी होती है फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड। चूंकि क्लास 10th लेवल में केवल 4 फंक्शनल ग्रुप हैं तो हम केवल उन्हीं से रिलेटेड जो है टेबल का फॉर्म करेंगे। और सबसे बड़ी बात इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल, ये हो गया आपका ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप और देन सफिक्स ग्रुप। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो फंक्शनल ग्रुप यूज होगा वो होगा COOH, या हम इसको लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH। द सफिक्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ओइक एसिड, ओइक suffix is oic acid। ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो है आपका COOH। इसको 2 तरह से हम लिख सकते हैं एक साथ, या C डबल बॉन्ड OH। इसके लिए जो सफिक्स यूज होगी वो होगी ओइक एसिड। दूसरा ग्रुप है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। इसके लिए जो फंक्शनल ग्रुप है वो है CHO, या हम इसको ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं C डबल बॉन्ड OH। इसके लिए जो सफिक्स यूज होगा वो यूज होगा AL, इसको पढ़ेंगे अल, AL। एल्डिहाइड के लिए हम सफिक्स यूज करेंगे अल, AL। देन आता है बेटा कीटो ग्रुप, कीटोन।
इसके लिए सिंबल इस तरह से भी लिखा आपको मिलेगा और आपको डायरेक्ट C डबल बॉन्ड O भी आपको लिखा मिलेगा। इसका जो सिंबल होगा वो होगा ONE, ओन, ओन। और एक और ग्रुप आपका है अल्कोहल का, ये आपको मैं इधर बता दे रहा हूं। अल्कोहल, अल्कोहल के लिए जो फंक्शनल ग्रुप यूज होगा वो होगा OH और इसका सफिक्स लिखा जाएगा ऑल, ऑल, OH और ऑल। बेटा इसके साथ सफिक्स के साथ हमें प्रीफिक्स भी लिखना चाहिए, पर चूंकि आप क्लास 10th लेवल है, क्लास 10th लेवल पर प्रीफिक्स का यूज इनके लिए आपको नहीं करना है। कुछ ऐसे जो है सेकेंडरी सब्सिडरी फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनके लिए आपको प्रीफिक्स यूज करनी है, उसका चार्ट भी आप देख लीजिए। हैलोजन, हैलोजन के लिए प्रीफिक्स यूज होगा, ये X सिंबल है आपका, प्रीफिक्स यूज होगी प्रीफिक्स यूज होगा हैलो। एंड हैलोजन अगर हमने क्लोरो लिया है, F है तो फ्लोरो, Cl है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, I है तो आयोडो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। अगर एल्काइल ग्रुप है हमारा, एल्काइल, एल्काइल के लिए हम यूज करते हैं R, इसकी प्रीफिक्स भी आपकी एल्काइल ही लिखी जाएगी। लेकिन अगर इसमें हमने CH3 ले लिया तो दैट इज मेथाइल ग्रुप, मेथाइल। हमने C2H5 लिया तो एथाइल। ऐसे ही प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, दे आर ऑल ऑफ एल्किल ग्रुप्स। सबसे पहले हम कार्बन की काउंटिंग करेंगे, जितने नंबर के कार्बन होंगे उस तरह से हम इसको राइट करेंगे। सफिक्स और प्रीफिक्स, किसी भी कंपाउंड की नेमिंग करने के लिए सबसे पहले हम उसका जो सीक्वेंस बनाते हैं वो ये होता है। सीक्वेंस में सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं हम लोग, यदि कंपाउंड में प्रेजेंट है तो, देन सफिक्स, देन प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड, देन सफिक्स। प्रीफिक्स, रूट वर्ड, देन सफिक्स। रूट वर्ड कितने कार्बन प्रेजेंट हैं और उसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए लगता है एन, मींस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए हम लोग एन यूज करते हैं। और अगर डबल बॉन्ड है तो इसके लिए यूज होता है इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लिए यूज होता है आइन। सपोज कीजिए हमारे पास ये कोई कंपाउंड है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो यहाँ पे आपकी 3 ही कार्बन है, आप चाहे इधर से काउंट कीजिए या इधर से काउंट कीजिए, नंबर सेम है। तो 3 कार्बन मीन्स रूट वर्ड हो गया हमारा 3 कार्बन पे प्रोप और सिंगल बॉन्ड एन, इसका नाम हो गया कंपाउंड का प्रोपेन।
नेमिंग के लिए अब यहां पे नेमिंग के लिए हमें सबसे लंबी चेन को सेलेक्ट करना होगा। पहले हम कार्बन को काउंट करें। अब देखना ये हमें कार्बन काउंट किधर से करना है। कार्बन हम उस तरफ से काउंट करते हैं जहां से नंबर कम आते हैं। फंक्शनल ग्रुप के जो सब्सिडरी ग्रुप्स है या फंक्शनल ग्रुप है उधर से काउंट करते हैं जहां से पास होता है। तो देखिए 1 2 एक चेन हमारी ये है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। एक चेन हमारी ये बनेगी 1 2 3 4 5 6। एक चेन हमारी 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर आपका किधर से पास आ रहा है? लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये है 1 2 3 4 5 6 7। लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये होगी। दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। अब कार्बन इधर से 1 2 3 4 से एथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो और 1 2 3 4 यानी कि सेंटर में है। तो हम कार्बन काउंटिंग किधर से करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। अब ये जो हमारा दो कार्बन है ये एक ब्रांच चेन हो जाएगा और दो कार्बन पे प्रीफिक्स होती है एथाइल CH2 CH3। एथाइल किस कार्बन से है? फोर्थ कार्बन पर है। तो 4 एथाइल 7 कार्बन रूट वर्ड हेप सिंगल बॉन्ड एन। क्या नाम? हेप्टेन। 4 एथाइल हेप्टेन। 4 एथाइल हेप्टेन। नेक्स्ट CH3 CH CH2 COOH। अब बेटा कार्बन काउंटिंग किधर से होगी? कार्बन काउंटिंग उस तरफ से होगी जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है। और एक चीज और भी ध्यान रखना है कि जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है ये भी काउंटेबल होता है। काउंटिंग हम अरेबिक नंबर में करते हैं 1 2 3 4। अब थर्ड कार्बन से लगा हुआ है मेथाइल। थर्ड से मेथाइल। 4 पे ब्यूट सिंगल बॉन्ड एन ओइक एसिड। तो सबसे पहले हम प्रीफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स क्या है? मेथाइल। प्रीफिक्स मेथाइल किस कार्बन से ऐड है? थर्ड कार्बन से। तो 3 मेथाइल रूट वर्ड 4 कार्बन ब्यूट सिंगल बॉन्ड है प्लस एन और फर्स्ट कार्बन पर ओइक एसिड है। ओइक एसिड। अगर हम इसको जोड़ करके लिखें तो हो जाएगा 3 मेथाइल ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। 1 पोजीशन लिखी नहीं जाती तो ये ई हट करके OIC एक साथ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3
3 methyl butanoic acid. Butanoic acid. 3 methyl butanoic acid. Next, what is the name of the compound? There are 2 carbon, means 8, single bond N और CHO की suffix al, means ethanol. ethanol. कितने कार्बन? एक कार्बन पे मेथ, सिंगल बॉन्ड एन, CHO पे अल, मेथेनल. मेथेनल, एथेनल, मेथेनल. कितने कार्बन? हमारे पास 2 कार्बन है, 2 कार्बन पे रूट वर्ड 8. कोई बॉन्ड अगर नहीं लगा है तो इसका मतलब सिंगल बॉन्ड है वो. एन, एथेन और COH पे ओइक एसिड, मींस एथेनोइक एसिड. एथेनोइक एसिड. CH3 CH2 CH2OH. 1 2 3 1 2 3 3 कार्बन प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, प्रोपेन और 1 पर ऑल, मींस 3 कार्बन प्रोप प्लस सिंगल बॉन्ड एन प्लस 1 OH का सफिक्स ऑल. 1 पोजीशन लिखी नहीं जाती, उसकी जरूरत नहीं लिखने की, तो ई के साथ ई को रिप्लेस करके ओ हम ओयल जोड़ दे तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल. प्रोपेनॉल. ऐसे ही अगर CH3CO इस तरह से लिखा हो या ऐसा लिखा हो, यहां पर 1 2 3 कार्बन प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन और दिस इज कीटोन ग्रुप. The suffix of the ketone group is on. On is from second carbon. 1 2 3 on 2. ई हटा करके ONE जोड़ दें, हो गया प्रो नोन 2. आपको आपके सिलेबस में प्रोपेनोन हो सकता है 2 लिखा ना मिले, केवल प्रोपेनोन ही लिखा मिले, तो लेकिन उसके नाम को लिखने के लिए हमें प्रोपेनोन 2 लिखना पड़ेगा. देखिए इधर
1 2 3 4, इधर से काउंट करेंगे आप तो थर्ड कार्बन पर है क्लोरो, और इधर से काउंट करेंगे तो सेकंड कार्बन पर क्लोरो है। तो हम कार्बन की काउंटिंग उस तरफ से करते हैं जिधर से नंबर्स कम आते हैं, मीन्स 1 2 3 4। अब क्लोरो के लिए हम प्रीफिक्स लिखते हैं। हमारे पास 2 क्लोरो है, सेकंड कार्बन से 2 क्लोरो लगा हुआ है, तो जब भी 2 होता है तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा हम यूज करते हैं। तो इसका नेमिंग के लिए 2 डाई क्लोरो, 4 कार्बन रूट वर्ड ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, ब्यूटेन। 2 डाई क्लोरो ब्यूटेन। हमारे डबल बॉन्ड का कंपाउंड, 2 कार्बन रूट वर्ड 8, डबल बॉन्ड इन, एथीन। एथीन। वन डबल बॉन्ड 1 2 3 मीन्स प्रोप। डबल बॉन्ड जब हम इधर से काउंट कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन से ऐड है, तो प्रोप 1 इन, या हम एक साथ लिख सकते हैं प्रोपीन 1, प्रोपीन प्रोपीन 1। इसी तरह अगर कोई हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड का कंपाउंड है, ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी दो कार्बन पर 8 और ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगता है आइन, इथाइन। इथाइन। सिंगल बॉन्ड के कंपाउंड में एन, डबल बॉन्ड का कंपाउंड इन और ट्रिपल बॉन्ड का कंपाउंड आइन। सिंगल बॉन्ड का कंपाउंड एल्केन होते हैं और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और इनको एल्कीन या एल्काइन की कैटेगरी में रखा जाता है। जो एल्केन है इनका जो जनरल फार्मूला है CnH2n+2। एल्कीन जनरल फार्मूला CnH2n and alkyne CnH2n-2, where n is the number of carbon atom and 2n is the number of hydrogen atom। तो इस तरह से हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर के थोड़े से जो क्लास 10th लेवल का जो पैटर्न है उस पर हमने किया। इसके क्वेश्चंस हमें करने हैं, क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।